एक बहुत अलग कंसेप्ट है जो कभी नहीं हुआ पहले। ये पहली बार हो रहा है और मैं इसे पहली बार कर रहा हूं, क्योंकि जनरली हम लोग अपने म्यूजिक की प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फोक म्यूजिक के साथ हो, चाहे वर्ल्ड म्यूजिक हो, चाहे दूसरे जॉनर्स के साथ हो। उसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, सब तरह के म्यूजिक जॉनर्स में हम डील करते हैं। फोक म्यूजिक में भी, सभी में। और ब्लूज या जैज और जो वेस्टर्न जॉनर्स हैं उनके साथ भी हम डील करते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये मुझे डेवलप हुआ पिछले साल 2 साल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक ये कोई ऐसे हुआ कि आइडिया आया और मैं अचानक कूद गया इसमें, नहीं। ये बहुत मनन चिंतन करके। मनन है क्या? मनन के नाम से मुझे मनन की याद आ रही। कहाँ है सात्विक के परम मित्र तन्मय? कहाँ है? तो उनको बोलिए वो कॉल पे नहीं सुने, यहाँ आ जाए। अच्छा। तो काफी मनन चिंतन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को समग्र कर पाया हूं, समेट पाया हूं, क्योंकि बहुत बहुत कठिन कार्य था। मेरे मन मस्तिष्क में बचपन से ये बहुत सारे प्रश्न आते थे बचपन से। और हमको जितनी लिमिटेड नॉलेज, जितना हमको अल्प ज्ञान दिया गया हमारे सनातन धर्म के बारे में, तो वो मुझे थोड़ा विचलित करता था कि हम अगर आज की इस पीढ़ी से अचानक किसी कॉलेज स्टूडेंट को मैं बुलाऊं और उससे पूछूं कि श्री राम कितने भाई थे कुल, तो वो मतलब मुझे ऐसे ऐसे रिएक्शन मिले। उसमें से 10 में से 2 लोग मुझे ऐसे मिले जो मुझे करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया। फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, I'll announce specially for you because I don't want that you should go without knowing what's going to happen here. I am an Indian classical musician by profession, and my guru, my master, is country's first ever Grammy Award winner, who's sitting right with us here. Please give him a big hand, Pandit Vishwamohan Bhattji, my guru, my father. उन्होंने अपना प्रोग्राम शिफ्ट किया मेरे लिए, and he's here with us. So what I'm doing here is I'm trying to bring the ancient knowledge about the religion and the names of particular gods and goddesses and their sons and their descendants, which surprisingly was never told to us, contrary to the popular belief that it must be very prevalent in India. But I'm telling you that that doesn't happen here. It's not in our education policy. This doesn't exist. And why do I want to do that? Because if one doesn't know the history, one doesn't know what mistakes were made in history, and one never learns. So that's very, very essential. And then, just like we say, what we say about commandants, that these gods, they laid down some foundations, some commandments for us, which we should have followed. But nobody did. And look what we made of this earth. Look what we made of this planet. What kind of destruction we are causing every single hour, every single second to this planet. So overall, this is to create an awareness amongst my listeners, whoever listens to me. If I have a larger audience, the larger the better. And then they imbibe the good qualities and then they follow them in their life to make their life and other people's life better and make this a better place to live. So that's the entire concept of this. And to educate and to at least make this generation aware of these names and these all those things which happened God knows how many thousands of years ago. But they are all noted down. But nobody cared, nobody bothered, nobody
nobody even told anyone. So that's what I want to change. That's what I want to make things better. तो यही उद्देश्य लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं आज। पहली बार ये है प्रयास, और भगवान श्री राम पर एकाग्र है, फोकसिंग ऑन भगवान श्री राम। और मैं हमेशा ये ऑब्जर्व करता था कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये पता होता था कि राम के और उनके भाइयों के पिता का क्या नाम है, ये भी बड़ी मुश्किल से पता होता है। हम अगर ये पूछ लें कि राम के कितने भाई थे, ये भी बहुत 10 में से 2 या 3 लोग बता पाएंगे आज की इस पीढ़ी के। उनसे अगर पूछा जाए कि राम के दादा कौन थे, तो सब लोग जो है वो, किसी के पास आंसर नहीं होगा। राम के पुत्रों के बारे में सब जानते हैं, लव कुश के बारे में, लेकिन उससे आगे कोई नहीं बताता है, उसके आगे कोई नहीं जानता है। तो राम के ग्रैंडसन, उनका क्या नाम था, कौन थे वो, ये सब बहुत सारी रोचक ऐसी जानकारी, ये मैंने एक बहुत ही सद्भावना से इसको मैंने समग्र करने का प्रयास किया। कई वर्षों से मैं इसमें लगा हुआ हूं। बहुत सारा मेरे पास, जैसे एक रिसर्च स्कॉलर करता है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है, जो मेरी वाइफ है, वो प्रोफेसर हैं MNIT में। तो मैं उनको देखता था, बहुत बहुत वर्षों पहले उन्होंने रिसर्च किया, तो मैं देखता था क्या कितना परिश्रम होता है। तो मैं पहले तो देख के मैं बड़ा परेशान होता था, लेकिन बाद में शायद आई गॉट, मुझे वो लग गया, धुन लग गई मुझे भी। तो मैं भी ये कलेक्ट करता रहता हूँ जहां से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। तो ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक और जहां श्रोताओं को सांगीतिक रूप से समृद्ध करेगा, वहीं जो हमारा पौराणिक सनातन धर्म के बारे में जो कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में अगर कुछ रोचक जानकारी हो सभी श्रोताओं को, तो ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में मेरे साथ मेरी ही तरह अन्य राम भक्त भी इसमें जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है आर्च कॉलेज के सौजन्य से। अर्चना सुराना जी का जितनी बार धन्यवाद दिया जाएगा उतनी बार कम होगा। और शुभ विचार संस्था, आप देखिए, शुभ विचार संस्था, जो उसका जो लोगो है, शुभ विचार संस्था के संस्थापक, उसके फाउंडर और बहुत ही युवा और बहुत ही एक्टिव एक ऐसी विशेष पर्सनालिटी है जिनको मैं स्टेज पे बुला रहा हूं, श्री जितेंद्र शर्मा। उनका स्वागत हम लोग करेंगे गर्मजोशी से। एक बहुत ही यंग पर्सनालिटी है और कुछ ना कुछ वो गतिविधियों में, अच्छी गतिविधियों में, धर्म और उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों में वो रहते हैं। तो इनके साथ मेरी वेवलेंथ मिली, कुछ विचारधाराएं मिली, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज इसका एक शुभारंभ किया जाए। और इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कुछ कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन है या कुछ था, चमत्कार जैसा इस तरह का कुछ हुआ। अभी कुछ हफ्तों पहले मैं अपने गुरुजी की सेवा में उनको लेके उत्तराखंड के यात्रा पे थे हम लोग। इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और 2-4 और वहाँ के बहुत ही सुरम्य वहाँ के जो शहर थे, वहाँ हमारा ये पूरा टूर चल रहा था। गुरुजी की सेवा में था मैं। और ऋषिकेश में एक जगह एक ऐसा कुछ अचानक से कुछ चमत्कार हुआ, क्योंकि ना तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा, और ना ये कोई प्लान था। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्या नहीं है। तो श्री राम मंदिर का रेप्लिका आप देख रहे हैं जो यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप सब लोग देख सकते हैं इसको। ये श्री राम मंदिर का रेप्लिका है जो अयोध्या में 2024 में बनके तैयार होगा। तो ये जब हमको हैंड ओवर किया गया, हमको सम्मानित किया गया और सम्मान में ये दिया गया, तो कुछ मन मस्तिष्क में भावनाएं ऐसी हुई और कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, और उसके बाद इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया।